नमस्कार। मैं एडवोकेट गणेश पिसे, एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, आपका आज की इस सैटरडे चैट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की मीटिंग शुरू करने से पहले अपने टीम का मिशन दोहराने के लिए कौन आगे आता है, तो टीम का मिशन यहाँ पे हमें दोहराना है। तो आप हैंड रेस कर सकते हो टीम का मिशन दोहराने के लिए। सुशील जी, सुशील जी ने हैंड रेस किया है। हाँ, अनम्यूट किया है आपको। सुशील किससे? हेलो, हाँ आवाज आ रहा? हाँ। मैं आपका टीम माय पॉसिबिलिटीज में दिल से स्वागत करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यहाँ एक अकेली टीम है जो अपने मूल्य को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों के उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बनाए रहने के लिए मदद करें, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं आपको इस टीम का हिस्सा बनने के लिए साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया मिशन क्रिएट किया आपने, और इसी मिशन के साथ हम सभी को आगे बढ़ना है। और इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। किसी का तो भी अनम्यूट है। ओके। हमने इस बुक में एक चैप्टर में, पहले दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमें आसान चीज कंसिस्टेंटली करते रहना है ताकि हमारा स्किल उसमें डेवलप हो सके। इसके लिए एक एग्जांपल आपके सामने मैं सेट करना चाहता हूँ कि एक आसान सी चीज, जब लीडरशिप कैसे क्रिएट होती है धीरे धीरे। शुरुआत में हमारे अंदर कुछ स्किल्स नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसी चीज को बार बार दोहराते रहते हैं तो धीरे धीरे अपने अंदर स्किल के हम डेवलपमेंट करते हैं। और जैसे ही लोग हमारे साथ ज्वाइन होते रहते हैं तो टीम किस तरह से बढ़ती है। लेकिन उसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि कंसिस्टेंटली वो चीजें कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक आपको वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा होगा। कोई बताए मुझे। अब इसे आपको गौर से देखना है ताकि हम समझ जाए कि कंसिस्टेंटली चीजें करने से टीम किस तरह से डेवलप होती है। If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out, you ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd.
because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is over-glorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in. You don't need no. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे एक लीडर ने शुरुआत की और कंसिस्टेंटली इसी चीज को वो करता गया, और जैसे ही वो कंटिन्यूअसली चीज करता रहा तो उसको 1 2 3 4 5 ऐसे किस तरह से ज्वाइनिंग बढ़ती है। तो इसी तरह से हमें भी अपने अंदर स्किल को डेवलप करते हुए अपनी टीम को डेवलप करना है, और यही सबसे आसान तरीका, आसान चीजों को अपने कंटिन्यूअसली दोहराना है ताकि अपने अंदर एक स्किल डेवलप हो सके। और इसी तरीके से कंसिस्टेंटली हमें सब चीजें करते रहे तो किस तरीके से टीम डेवलप होती है। जो एक अकेला डांस कर रहा था उसके साथ और दूसरा है, उसे भी कुछ खास नहीं लगता था, तीसरा है वो भी कुछ खास नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ लोग ऐसे ज्वाइन हुए जो कुछ खास स्किल जानते थे और उनके साथ साथ ढेर सारी पूरा स्टेडियम, पूरे वहां की जो लोकेलिटी थी सब उनके साथ ज्वाइन हो गए। और ये ताकत होती है नेटवर्क मार्केटिंग की। हमने पिछले सेशन में हमने अपने उत्पाद या अवसर को समझने के लिए प्रोस्पेक्टस को किस तरह से आमंत्रित करना है, इसके बारे में हमने कुछ स्किल्स के बारे में देखा था। उसमें कुछ नियम हमें बताए गए थे कि हमें परिणामों से खुद की भावनाओं को अलग करना होगा और हमारा प्राथमिक लक्ष्य ग्राहक या डिस्ट्रीब्यूटर बनाना नहीं, लोगों को शिक्षित करना और उन्हें अपने उत्पाद और अपने अवसर के बारे में समझाना, एक नियम था। दूसरा नियम बताया था कि आप वही रहे जो आप हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस को आमंत्रण देने के लिए कुछ इंप्रेशन डालने के झंझट में हम कुछ अलग ही व्यक्ति बन जाते हैं, तो ये उस प्रोस्पेक्ट के लिए भी असुविधाजनक बन जाता है। तो इसीलिए ऑथर ने नियम दूसरा बताया था कि आप वही रहे जो आप हैं। तीसरा बताया था कुछ जुनून लाए, उत्साह। अब उत्साह के बारे में भी ऑथर ने पहले बताया कि उत्साह संक्रामक होता है, ज्यादा उत्साह केवल काफी नहीं, उत्साह के साथ हमें अपने अंदर स्किल्स भी चाहिए। थोड़ा उत्साह को बाजू में रख के जुनून के साथ, और उसके लिए ऑथर ने हमें सजेस्ट किया था कि कुछ हम संगीत सुने जो हमें प्रेरणा प्रदान करता है, मुस्कुराए। चौथा नियम बताया था कि मजबूत आसन मुद्रा में रहे। किसी भी परिस्थिति में हमें एक मजबूत आसन मुद्रा में रहना चाहिए। हमारे तरफ कोई देखे तो हम उसे आश्वस्त लगने चाहिए, हमारे अंदर एक विश्वास निर्माण होना चाहिए। तो इस मुद्रा में हमें बैठना है। तो ऐसे 4 नियम बताए थे और उसके अंदर कुछ 8 चरण ऑथर ने बताए थे हमें, जिसके बारे में हमने डिटेल में जानकारी पिछले 2 सेशन में ली। तो पहला था जल्दी में रहे, हमें अपने आप को जल्दबाजी में दिखाना है। दूसरा था प्रोस्पेक्टस को प्रोत्साहित करना है, प्रोस्पेक्टस की प्रशंसा करनी है। तीसरा उन्हें आमंत्रित करना है। चौथे चरण में हमने देखा था अगर मैं क्या, यानी अगर मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूं तो क्या आप उसे देखेंगे। इस तरह का जो कुछ कन्वर्सेशंस भी हमने पढ़े थे, तो उस कन्वर्सेशन के थ्रू भी हम प्रोस्पेक्ट के साथ अपना कम्युनिकेशन हाँ में बदल सकते हैं। पांचवा था समय का प्रतिबद्धता प्राप्त करना, समय के प्रति हमें उनके साथ प्रतिबद्धता प्राप्त करनी है।
छठवां था समय की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना, एग्जैक्टली किस समय वो इस वीडियोस को देखेंगे इसके बारे में भी हमें उसकी पुष्टि करनी है। उसके बाद सातवां था अगली कॉल निश्चित करें कि मैं अगर आपको कल कॉल करूं तो आप शायद वो वीडियो देख चुके होंगे, तो इस तरीके से अगली कॉल जो है उसे हमें निश्चित करना है। और आठवां और सबसे महत्वपूर्ण चरण था कि कॉल बंद कर दे। तो इसके साथ हमें कुछ कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टस और वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टस के एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखे थे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं स्किल 3। स्किल 3 जो है प्रोस्पेक्टस के सामने अपने उत्पाद या अवसर का प्रदर्शन करना। हमने बात की पहले 2 स्किल जो प्रोस्पेक्टस को पहचानने और उन्हें अपने उत्पाद और अवसर के बारे में अधिक जानने के लिए आमंत्रित करना। जैसे कि आपने सीखा कि आप अपने प्रोस्पेक्टस को अपनी कंपनी के टूल्स देखने के लिए आमंत्रित करेंगे। जैसे कि हमने सीखा कि हम अपने जो टूल्स है, जो भी वीडियोस है, जो भी यूट्यूब की लिंक है, जो भी जूम की लिंक है, हम उन्हें इनवाइट करते हैं और वो देखने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। अगर वो टूल्स खुद देख रहे हैं, अगर वो जो अपने प्रोस्पेक्ट है वो खुद अपने टूल्स देख रहे हैं, तो टूल्स दिखाने के लिए उन्हें हमें आमंत्रित करते हैं। और उस समय आप उनके आसपास नहीं होते जब वो अपने टूल्स देखते हैं। जब किसी को हमने लिंक भेजी और वो वीडियो देख रहा है तो उस वक्त हम नहीं है, तब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉलो अप करें कि आप कब करेंगे। हमें क्या करना है, फॉलो अप लेना है कि ये वो कब करेंगे इसे। अगर आप उनके सामने हैं तो आपको कुछ बातें उन्हें समझाने की आवश्यकता है। और उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुद्दा नहीं है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुद्दा नहीं है, यह चीज हमें ध्यान में रखनी है। क्योंकि हमें खुद एक मुद्दा बन के हम उनके सामने अगर प्रेजेंट होते हैं तो बहुत बार वहां पर हमें नाराजी हो सकती है, नाकामयाबी भी फेस करने की जरूरत पड़ सकती है। तो खुद को मुद्दा बनाना नहीं है। और यह चीज ऑथर भी बोलते हैं कि यह मेरे लिए स्वीकार करना बहुत कठिन था जब मैंने पहली बार शुरुआत की, कि मैंने सब कुछ पढ़ा जो मैं पढ़ सकता था, मैंने सब कुछ सुना जो मैं सुन सकता था, और सभी ट्रेनिंग में गया जहां मैं जा सकता था। मुझे लगता था कि सबसे महत्वपूर्ण काम जो मैं एक्सपर्ट बनने के लिए कर सकता हूं वो है कंपनी से जुड़ी सभी जानकारी रखना। यदि कोई मुझसे सवाल करता है तब मैं जवाब देने के लिए तैयार रहता हूं। ये जो प्रिपरेशन है, ये जो चीजें हैं जो यहाँ पे ऑथर ने बताई, ये सुनने में सही लगती है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि मैं किसी के साथ बैठ जाऊं और कहूं कि मैं आपको अपने उत्पाद के बारे में सब बताता हूं, मैं आपको हमारी कंपनी के बारे में सब बताता हूं, मैं आपको अपने मार्केट प्लान के बारे में सब बताता हूं, मैं आपको हमारे सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताता हूं। अगर आप बड़े और सफल संगठन का निर्माण करना चाहते हैं तब इस रास्ते के साथ बड़ी समस्याएं हैं। उसमें पहली समस्या यह है कि यह मायने नहीं रखता कि मैंने कितना सीखा है। मेरे लिए हमेशा एक सवाल होता जो मुझे आउट कर देता था। सवाल कौन पूछता है? अपना प्रोस्पेक्ट। और जब से मैं खुद को एक्सपर्ट की तरह प्रस्तुत करने लगा था और यदि मैं आउट हो जाता तब वो प्रोस्पेक्ट पूरे अवसर पर सवाल खड़ा कर सकता था। तो एक्सपर्ट इसलिए होना चाहिए कि अगर आप खुद प्रेजेंट करते हो, खुद मुद्दा बन जाते हो, तो अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कोई सवाल करता है और उस वक्त अगर आप आउट हो जाते, उस सवाल का सही जवाब अगर आप नहीं दे पाते, तो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन होने तक के वो प्रोस्पेक्टस आपको सवाल पे सवाल खड़े कर सकता है। तो ये पहली समस्या ऑथर ने यहाँ पे बताई। दूसरी समस्या ये थी कि अधिकतम प्रोस्पेक्ट जानते थे कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं।
अधिकतम जो भी हमारे सराउंडिंग में जो लोग हमें जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि ये तो अभी इसमें आया है, ये इतना एक्सपर्ट नहीं है। इसलिए जब मैं लोगों के सामने खुद को एक्सपर्ट प्रस्तुत करता था तो उन्हें पता होता था कि यह सच नहीं है, यह एक्सपर्ट नहीं है, इसने तो अभी शुरू किया है, और यह उन्हें अधिक उलझन में कर देता था। क्योंकि जिन लोगों को पता होता है कि आप एक्सपर्ट नहीं है फिर भी आप एक्सपर्ट करके खुद को प्रेजेंट करते हैं, तो ये उन लोगों को उलझन में डाल देता है और वो उतनी गंभीरता से हमें नहीं लेते। और तीसरी समस्या यह थी कि अगर मैं खुद को एक्सपर्ट दिखाने में असफल भी हो जाता था तो मेरे संगठन के अन्य सदस्य यह सीखने की इच्छा नहीं रखते थे। मैं हूं, मेरा संगठन है कुछ लोगों का, मैं अगर मेरे एक्सपर्ट दिखाने की जो यह है प्रैक्टिस है या फिर एक्सपर्ट दिखाने में अगर मैं असफल हो जाता हूं तब मेरे संगठन के अन्य सदस्य भी यह सीखने की इच्छा नहीं रखते। हम इसलिए सीख रहे हैं, मैं इसलिए सीख रहा हूं क्योंकि हमारे संगठन के जो लीडर्स है, ज्ञानेश्वर दोरकर सर है, विट्ठल दोरकर सर है, ये सफलता से इन चीजों को करते आए और उन्हीं का डुप्लीकेशन करके हम भी इस चीज को सफलतापूर्वक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ अभी विमेंस के लिए भी सौ वर्षा दोरकर मैडम, सौ हरने मैडम और सौ शीतल दोरकर मैडम, इन लोगों ने भी विमेंस के लिए भी अगले फ्राइडे से इसी तरह के चैट का आरंभ शुरू कर दिया है। अभी इस फ्राइडे में फर्स्ट चैट उनका रहेगा, उसकी लिंक भी सब महिलाओं को भेज दी जाएंगी, केवल महिलाओं के लिए वो प्रोग्राम है। तो ऑथर ये कहते हैं कि अगर मैं असफल हो जाता तो मेरे संगठन के अन्य सदस्य भी ये सीखने की इच्छा नहीं रखते थे। परिणाम यह हुए कि मैं हर अवसर दिखाने वाला व्यक्ति, संगठन का निर्माण करने का ऐसा कोई रास्ता नहीं था जो इस रणनीति के साथ डुप्लीकेट हो जाए। और डुप्लीकेशन के बिना नेटवर्क मार्केटिंग एक नौकरी है। अगर आप डुप्लीकेशन नहीं करते हो तो डुप्लीकेशन के बिना नेटवर्क मार्केटिंग एक नौकरी है। क्योंकि डुप्लीकेशन अगर नहीं करते हो, क्योंकि डुप्लीकेशन में क्या होता है, हम अपना स्किल डेवलप करते रहते हैं और नौकरी में जो चीजें बार बार एक नौकर की तरह हमें जो चीजें करनी होती है किसी के बोलने पे वो हम करते हैं। तो डुप्लीकेशन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, ऐसा ऑथर कहते हैं। और पहले के दिनों में नेटवर्क मार्केटिंग ऑथर के लिए सही मायने में एक नौकरी ही थी। मेरा कोई डुप्लीकेशन नहीं था क्योंकि मैंने अपने आप को मुद्दा बना लिया था। जैसा ऑथर ने पहले ही बताया है कि अपने आप को मुद्दा न बनाए। ऑथर का कोई डुप्लीकेशन नहीं था शुरुआती दिनों में क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुद को ही मुद्दा बना लिया था। लेकिन मैंने निर्धारित किया और निरीक्षण करना शुरू कर दिया कि सबसे सफल डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे अपनी प्रोजेक्शन करते हैं। लेकिन जब ऑथर ने निरीक्षण किया, निर्धारित किया कि सबसे सफल डिस्ट्रीब्यूटर्स किस तरह अपने प्रोजेक्शन करते हैं, तो ऑथर ने क्या जाना कि प्रोफेशनल कभी खुद को मुद्दा नहीं बनाते। इससे ज्यादा वो खुद को एक्सपर्ट के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, खुद को एक्सपर्ट के रूप में भी वो प्रस्तुत नहीं करते। वह एक सलाहकार की तरह प्रोस्पेक्ट को टूल्स और इवेंट से जोड़कर शिक्षित करने में मदद करते हैं। जैसा कि ऑथर ने पहले भी कहा है कि हमें अपने उत्पाद के प्रति जो टूल्स है अपने पास, जो भी वीडियोस है, जो भी लिंक्स है, जो भी मटेरियल अपने पास है, उस मटेरियल को हमें अपने प्रोस्पेक्ट तक पहुंचाना है और उस मटेरियल को देखने के लिए उन्हें आमंत्रित करना है ताकि वो इसके बारे में शिक्षित हो जाए। तो सफल डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, एक सलाहकार की तरह प्रोस्पेक्ट को टूल्स और इवेंट से जोड़कर उन्हें शिक्षित करने में मदद करते हैं। यदि कोई प्रोस्पेक्ट सवाल करता है, फिर भी अगर कोई सवाल करता है तब वह जवाब देने का मार्गदर्शन करेंगे लेकिन सवाल का सीधे जवाब नहीं देंगे। प्रोफेशनल जानते हैं कि वह अपने ज्ञान और अनुभव से लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, ये प्रोफेशनल जानते हैं। लेकिन यह भी वो जानते हैं कि नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ऐसा करने में लंबा समय लग सकता है, इसीलिए वह सरल रास्ते पर आते हैं। क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इजीली भी लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन
उनको ये भी ज्ञात होता है, उनको ये भी पता होता है कि नए डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनको शायद ऐसा करने में लंबा समय लग सकता है, इसीलिए वो सरल रास्ते पर आते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या काम करता है यह मायने नहीं रखता, क्या डुप्लीकेट होता है सिर्फ यह मायने रखता है, ऐसा ऑथर ने यहाँ पे बताया है। डुप्लीकेशन क्या होता है यह मायने रखता है। प्रोफेशनल जो होते हैं अपने स्वयं के ज्ञान की जगह टूल्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि अपने उत्पाद के बारे में ढेर सारे वीडियोस है। हम केंगन में काम करते हैं इनेजिक में, इसके ढेर सारे टेस्टिमोनियल्स है, ढेर सारे रिसर्च है, डॉक्टर्स के ओपिनियंस है। हर एक चीज के बारे में, उसकी प्लेट्स के बारे में, उसकी गारंटी के बारे में, उसकी ई क्लीनिंग सिस्टम के बारे में, उसके प्लान के बारे में, हर एक के बारे में डिटेल जानकारी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो प्रोफेशनल्स की तरह हमें भी अपने टूल्स का उपयोग करना है। प्रोफेशनल्स अपने प्रोजेक्शन की जगह इवेंट्स का उपयोग करते हैं। वो प्रोजेक्शन खुद नहीं देते, वो इवेंट्स में आने के लिए लोगों को आमंत्रित करते हैं। प्रोफेशनल्स खुद जानकारी देने के बजाय अन्य डिस्ट्रीब्यूटर का उपयोग करते हैं। खुद जानकारी देने के बजाय अन्य डिस्ट्रीब्यूटर का उपयोग करते हैं। प्रोफेशनल्स खुद को एक एक्सपर्ट की तरह प्रस्तुत नहीं करते, वो कभी खुद को एक एक्सपर्ट की तरह प्रस्तुत नहीं करते, क्योंकि उसमें क्या होता है हम खुद मुद्दा बन जाते हैं। ऑथर ने हमें यहाँ पर यही बताया कि हमें खुद मुद्दा नहीं बनना है, सिर्फ लोगों को उत्पाद और अवसर के बारे में बताने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, उत्पाद और अवसर जो हमारा प्रोडक्ट है और जो हमारा बिजनेस प्लान है उसके बारे में बताने के लिए सिर्फ आमंत्रित करते हैं और टूल्स के द्वारा जानकारी देने में मदद करते हैं। जो भी टूल्स उनके पास होते हैं, वीडियोस है, सीडीज है, पेन ड्राइव है, कंप्यूटर में टेस्टिमोनियल्स है, वो सब देखने के लिए, जानकारी देने के लिए मदद करते हैं। साथ साथ प्रोफेशनल्स में क्या होता है, उनमें एक जुनून होता है, उत्साह होता है और विश्वास को वो भरते हैं। यदि आपने कभी भी प्रोफेशनल को काम करते देखा है तब आप उनके अंदर एक संक्रामक आग देखेंगे। जुनून, उत्साह और विश्वास को अपनी प्राथमिकता बनाए। अपने अंदर जुनून होना चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए और विश्वास के साथ हमें हर एक चीज को करना है और इन सब तीनों को हमें प्राथमिकता बनाने हैं और प्रोफेशनली आमंत्रित करें और टूल्स को बाकी काम करने दे। बाकी का काम अपने जो टूल्स है वो सब टूल्स काम करते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट को आमंत्रित करना है उन टूल्स को देखने के लिए, उस इवेंट में जुड़ने के लिए, ताकि वो अपने उत्पाद और अपने अवसर के बारे में, अपना जो प्लान है, बिजनेस प्लान है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी ले सके। मैंने सुना है और मुझे लगता है कि मैं यह सच भी है कि मार्कर रखने वाला व्यक्ति पैसे कमाता है। ऑथर ने यहाँ पे बताया कि मार्कर रखने वाला व्यक्ति पैसे कमाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अन्य शब्दों में कहे तो जो व्यक्ति लोगों के सामने प्रोजेक्शन देता है अधिकतर ज्यादा पैसे कमाता है। जब मैंने पहली बार शुरुआत की तो मुझे लोगों के सामने बोलने में डर लगता था। जब ऑथर ने शुरुआत में पहली बार शुरुआत की तो ऑथर को भी लोगों के सामने बोलने में डर लगता था, लेकिन मैं महत्वाकांक्षी था। जब से सबने कहा कि यह महत्वपूर्ण स्किल है, मैंने इस पर महारत करना निश्चित किया है। जब सबने ऑथर से कहा कि यही सबसे महत्वपूर्ण स्किल है, तो इस पर महारत हासिल करने का निर्धारित ऑथर ने किया था और मैंने छोटी और प्रभावशाली प्रशंसा देना सीखना शुरू कर दिया। हमारे स्किल में ऑथर ने बताया कि हमें प्रोस्पेक्टस की प्रशंसा करनी है, तो ऑथर ने शुरू कर दिया। अब ऑथर आते हैं मेन स्किल पे। अपनी कहानी बनाना, यह सीखना मेरे व्यापार के निर्माण के लिए अत्यंत मूल्यवान था और आज भी है। लोगों को इसमें रुचि नहीं होती कि आप कितना जानते हैं। हमने ढेर सारी ज्ञान इकट्ठा कर लिया, सब चीज के बारे में हम जानते हैं, लेकिन लोगों को इसमें रुचि नहीं होती है कि आपको कितना ज्ञान है, आप कितना जानते हैं। लेकिन लोग इसमें रुचि रखते हैं कि आपकी कहानी में जब तक आप उन्हें बोर नहीं करते। लोगों को आपकी कहानी में इंटरेस्ट होता है, आपके पास कितना नॉलेज है इसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता।
लोग आपकी कहानी सुनना चाहते हैं तब तक जब तक कि वो बोर नहीं हो जाते। मैंने कुछ समय अपनी कहानी पर काम किया। एक दो सुधार के बाद एक मेरी कहानी बन गई। तो ऑथर ने क्या किया, ऑथर हमें यहाँ पर ये सजेस्ट करती है कि हमें अपनी खुद की कहानी बनानी है और वो कहानी लोगों को दिखानी है, सक्सेस स्टोरी जिसे हम बोलते हैं। तो ऑथर ने भी कुछ इस तरह से अपनी कहानी बनाई थी। हाय, मेरा नाम एरिक वॉर है और मैं रिटायर्ड अंडर अचीवर हूँ। मैंने 23 साल की उम्र तक 18 नौकरियां की है और मैंने सोचना शुरू किया कि मेरा भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं अपने कम परिणामों से शर्मिंदा था और मैं अपने जीवन के लिए कुछ करने का एक रास्ता देख रहा था। 1988 में जनवरी में मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से परिचय हुआ और इसने मेरा जीवन बदल दिया है। भविष्य से डरने के बजाय मैं उसके बारे में उत्साहित हो गया। तो इस तरीके से ऑथर अपनी कहानी को पुटअप करते हैं, खुद की एक कहानी बनाते हैं और किस तरह से, और उसके बाद मैंने अपने वर्तमान सफलता के स्तर पर आधारित जो उचित था जोड़ दिया। प्रेजेंट में ऑथर के पास अब क्या चीजें आ गई है, ये सब चीजों को जोड़ने के बाद उसकी स्टोरी लोगों के सामने जब ऑथर ने रखी, तो ऑथर का मानना यह है कि मेरी कहानी का विषय था, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। हमारी कहानी के पीछे पीछे यही विषय होना चाहिए कि अगर मैं कर सकता हूं ये, तो आप में से कोई भी कर सकता है। और इस कहानी ने काम किया। मैंने इसे हर समय उपयोग किया। होटल होटल में जो मीटिंग्स होती है उसमें, घरेलू मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंस कॉल में, इन सभी में ऑथर ने इसका उपयोग किया। और ऑथर ये बोलते कि कोई फर्क नहीं पड़ता कल आप क्या थे, आप खुद की कहानी बना सकते हैं। मैंने देखा कि हर एक अच्छी कहानी में 4 तत्व होते हैं। तो यहाँ पर ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें भी अपनी एक कहानी बनानी चाहिए। तो कहानी बनाने के लिए हर एक कहानी में 4 तत्व क्या जरूरी है। तो पहली बात, आपका कल। कल यानी हमारा पास्ट। हमारे पास्ट में हमारी पोजीशन क्या थी, किन परिस्थितियों से हम जूझ रहे थे। और दूसरा तत्व उसके साथ में है कि वो बात जो आपको आपके कल की पसंद नहीं, उस पास्ट में हमें किन चीजों से संघर्ष करना पड़ा, जो चीजें हमें पसंद नहीं थी, उसके बारे में फोकस करना है। तीसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग या कंपनी ने उसे कैसे बचाव किया। बहुत से लोगों की कहानी रहती है, बिजनेस था, डूब गया, क्राइसिस आ गए, कर्जा हो गया, ढेर सारा कर्जा हो गया, कर्जदार घर पे आके बैठा करते थे और उस समय बहुत बुरा लगता था। घर से भाग जाना, कहीं दूर चले जाना ऐसा लगता था। और उतने में मेरी परिचय नेटवर्क मार्केटिंग से हुआ और उसने कैसे बचाव किया, इस तरीके से। लेकिन कहानी रियल होनी चाहिए, हमें कुछ भी जोड़ना नहीं है। ऑथर ने अपने पहले चैप्टर में बताया कि हर चीज रियल होनी चाहिए। चौथा है आपके परिणाम, या आप अपने भविष्य के बारे में कैसा महसूस करते हैं। तो इससे जुड़ने के बाद हमारे अंदर क्या परिणाम हुए, हमारी सिचुएशन कैसे बदल गई, हमारी तकदीर किस तरीके से चेंज हो गई। तो इन चीजों को बताने के बाद अपने भविष्य के बारे में हम कैसा महसूस करते हैं, इसको हमें अपनी कहानी में ऐड करना है। और अपनी कहानी बनाने में कुछ समय ले और जहां मौका मिले वहां हम अपनी कहानी बता सकते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हर एक ने अपनी खुद की कहानी बनानी चाहिए। अब मैंने अपनी कंपनी के अवसर प्रस्तुति करने पर महारत हासिल करने का फैसला ले लिया था। मेरी कंपनी के उच्च अर्नर अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी थे। इसके अलावा वही प्रेजेंटेशन हर रोज देते थे। इसीलिए मैंने उनकी प्रोजेक्शन रिकॉर्ड की और उसे कागज पर लिख लिया। जब मैंने यह पूरा किया, मैंने खुद प्रोजेक्शन देते हुए अपनी आवाज रिकॉर्ड की। एक शब्द, वही कहानियां, वही मजाक, सब कुछ उनकी प्रोजेक्शन की तरह।
ऑथर ने अपने लीडर का जिस तरीके से डुप्लीकेशन किया उसी तरीके से हर एक ने अपने लीडर का डुप्लीकेशन करना चाहिए अच्छी चीजों के बारे में। और यह करने के बाद ऑथर ने क्या किया कि उनका जो प्रेजेंटेशन था वैसा का वैसा कैसेट बार 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 हर एक शब्द को सुना, खुद का एक रिकॉर्डिंग बनाया और उसको भी बार बार सुना। यह करने के बाद मैंने उसे सुना और बहुत बुरी थी, शुरुआत में अच्छा नहीं था, मेरी आवाज में कोई ताकत नहीं थी, वह बोरिंग थी, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बार बार रिकॉर्ड की जब तक वो अच्छी नहीं होती। बार बार ऑथर ने ट्राई किया, जब तक कि वह अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी तब तक ऑथर ने बार बार ट्राई किया। अंत में मेरे पास अपनी प्रोजेक्शन की ऑडियो कैसेट थी और आखिरी में ऑथर के पास उसके प्रोजेक्शन की ऑडियो कैसेट खुद की बन गई और मैं उसे अपनी कार में बार बार सुना। जब भी ऑथर ड्राइव पे जाते थे अपनी कार में उस कैसेट को बार बार सुनते थे और मैं शर्त लगा सकता हूं कि मैंने उसे 500 बार सुना है। ये जज्बा होना चाहिए और समय से मुझे याद हो गई। और ऑथर ये भी कहते कि आप विश्वास नहीं करेंगे, जो आत्मविश्वास मुझे इससे मिला, मैं प्रेजेंटेशन देने की घबराहट छोड़कर प्रोजेक्शन देने के अवसर देखने लगा। फिर ऑथर ने प्रोजेक्शन देखने के अवसर चालू कर दिए, घरेलू कॉन्फ्रेंस हो, कॉल कॉन्फ्रेंस हो, सब में प्रेजेंटेशन दी और हर जगह जो ऑथर को मिलती थी, लोकल मीटिंग का भी ऑथर प्रेजेंटर बन गया था और बड़े एवं बेहतर इवेंट्स की तरफ बढ़ता गया और यहां तक कि कंपनी कन्वेंशन में बोलने के लिए भी ऑथर को कहा गया। तो प्रेजेंटर बनने के कुछ चरण ऑथर ने यहाँ पे बताए कि हमें अपने अपने आप को अपने उत्पाद और अवसर को किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो पहली चीज अपनी कहानी सीखना, दूसरा अवसर प्रेजेंटेशन सीखना, तीसरा अन्य ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन के लिए कुछ और ट्रेनिंग हासिल करनी है तो उन चीजों को भी हमें सीखना चाहिए। अपनी कहानी बनाने में कुछ समय ले और जहां मौका मिले वहां बताए। इस स्किल को सीखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे ऑथर ने हमें बताया कि ये जो स्किल है इसको सीखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें याद रखनी है। पहली बात, जब हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, तो आप मैसेंजर है, मैसेज नहीं है। हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि हम मैसेंजर है, हम सिर्फ उन्हें शिक्षित कर रहे हैं अपने उत्पाद और अपने अवसर के बारे में, उन्हें उनका ज्ञान बढ़ा रहे हैं। तो हम मैसेज नहीं है, हम मैसेंजर है। खुद को आमंत्रित के रास्ते पर रखे और टूल्स की सहायता ले। हम एक इनविटेशन है, हम इनवाइट कर रहे हैं उन्हें, आमंत्रित के रास्ते पे हमें खुद को रखना है और टूल्स की सहायता से उन्हें इनवाइट करना है। और दूसरी चीज ये है कि अपनी कहानी को इस तरह बनाना सीखे कि प्रोस्पेक्ट आपको और सुनने के लिए उत्सुक हो जाए। हर चीज अपनी कहानी में हमें ऐसी डालनी है, जो चीज हमारे साथ हुई है, जो भी बदलाव हमने अनुभव किए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, उन सब बदलाव के साथ हमें अपनी कहानी एक मजबूत तरीके से प्रोस्पेक्ट के सामने प्रेजेंट करनी है ताकि उसे और सुनने में वो जो प्रोस्पेक्ट है वो उत्सुक हो जाए। और तीसरी चीज, जब बात हो समूह के सामने प्रेजेंटेशन, जब लार्ज पब्लिक के सामने प्रेजेंटेशन तैयार करने की जो है तो उसका तैयारी ही समाधान है। जब आप तैयार होंगे सब कुछ मजेदार रहेगा। जब भी हम तैयार होंगे तो सब मजेदार रहेगा। और ऑथर ये बोल रही कि अपनी कहानी बनाने में कुछ समय ले और जहां मौका मिले वहां अपनी कहानी बताए। तो ये जो स्किल है जो अभी हमने देखा, स्किल नंबर 3, तो इसमें ऑथर ने प्रोस्पेक्टस के सामने अपने उत्पाद या अवसर का प्रदर्शन करने के लिए किस तरीके से टूल्स का इस्तेमाल करना है और अपनी खुद की कहानी कैसे बतानी है, उसके लिए कहानी बनाने के लिए किन चीजों की, किन तत्वों की आवश्यकता है, ये भी बताया। क्योंकि आपको कितना ज्ञान है इनसे लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। आप पहले क्या थे इससे भी लेना देना नहीं है।
लोगों को आपकी कहानी लोग तभी सुनते हैं जब हम उसे रोचक बनाते हैं, लोग उत्सुक हो जाए अपनी कहानी सुनने के लिए। तो इस तरीके से ये स्किल नंबर 3, प्रोस्पेक्ट के सामने अपने उत्पाद या अवसर का प्रदर्शन करना, इसके लिए हमें अपनी कहानी बनाना है। तो मैं भी ये चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी खुद की एक कहानी बनाना शुरू कर देते हैं। कब हमने शुरुआत की थी, उस समय क्या परिस्थिति थी, किस सिचुएशन से हम जूझ रहे थे, उसके बाद किस तरीके से हमारा परिचय नेटवर्क मार्केटिंग से हुआ, वो कौन था जिसके साथ हम जुड़े, उसके बाद पहला सक्सेस, दूसरा सक्सेस, तीसरा सक्सेस, फिर हम कैसे सक्सेस होते गए, और आज की हमारी वर्तमान परिस्थिति क्या है, और इसे लेकर हम भविष्य के बारे में क्या प्लान कर सकते हैं, हम भविष्य को कैसा देखते हैं। तो इन सब तत्वों को मिलाकर हमें अपनी कहानी बनानी है सच्चाई से, और इसी कहानी को रोचक तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, और उसको गंभीरता से आपका प्रोस्पेक्ट तभी लेगा कि आपके अंदर आपको जो पहले जो स्किल्स बताया ऑथर ने, उन सभी स्किल्स अगर आपके अंदर होते हैं, तभी आपकी कहानी रोचक तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद चौथा स्किल है प्रोस्पेक्ट के साथ फॉलोअप करना। अभी आमंत्रण हो गया, टूल्स के माध्यम से हमने प्रोस्पेक्टस को अपने उत्पाद या अवसर के बारे में शिक्षित किया, प्रेजेंटेशन के बारे में भी ऑथर ने हमें यहाँ पर बताया, लार्ज पब्लिक के सामने भी प्रेजेंटेशन कर रहा है, तो हमें अपने आप को तैयार रखना होगा। अब सबसे मेन चीज, बहुत बार क्या होता है कि हम डेमो तो दे देते हैं, अपने उत्पाद के प्रति पूरा डिटेल डेमो देते हैं, सब टेस्टिमोनियल सब 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 उन्हें दिखाते हैं, लेकिन जब टाइम आता है फॉलोअप लेने का, अपने प्रोस्पेक्ट को अपने उत्पाद या अवसर के प्रति जब हम आमंत्रित करते हैं, जब उसके बारे में पूरा नॉलेज देते हैं, लेकिन जब उसका फॉलोअप लेना होता है कि उन्हें क्या समझ में आया, उसके बारे में उनकी सोच क्या है, क्या विचार है, तो इन चीजों में हम बोले तो मैं खुद भी इन चीजों में बहुत बार नाकामयाब रहा हूं, लेकिन जैसे पता चला कि सबसे मेन चीज फॉलोअप है, तो फॉलोअप पे जिस दिन से मैंने ध्यान देना शुरू किया, तो मुझे भी कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंस उससे आए, और उससे मेरे बिजनेस के प्रोस्पेक्टस के प्रति और ज्वाइनिंग भी उससे काफी बढ़ गई। तो ये सबसे मेन स्किल है जिसे अध्याय सातवें अध्याय में ऑथर ने दिया है, स्किल नंबर 4। तो इस स्किल के बारे में हम अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने सीखा है प्रोस्पेक्ट के सामने अपने उत्पाद या अवसर का प्रदर्शन किस तरह से करना है। तो आज क्या करना है, अपनी खुद की कहानी कैसे बनती है। हो सकता है हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसके आगे की कहानी हमारी बनेगी। तो अपनी कहानी को हमें बनाना है, और जब आपकी कहानी बनेगी, सक्सेस स्टोरी, हम बहुत बार देखते हैं किसी भी उत्पाद के इसमें, तो स्टेज पे आके हर एक लीडर आके अपनी स्टोरी बनाता है कि कैसे उसने अचीवमेंट किया, किस तरीके से शुरुआत की थी, और उसे देखने के बाद सामने बैठे जितने भी प्रोस्पेक्ट होते हैं वो प्रभावित होते हैं, और ऑब्वियसली वो आकर्षित हो जाते हैं उस बिजनेस की तरफ। और इसीलिए ऑथर ने यहाँ पर मेन स्किल यहाँ पर सिखा है कि अपनी कहानी बनाना। तो ये आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या वैल्यू मिली, या फिर आप क्या कुछ शेयर करना चाहते होंगे, तो आप प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं। भागवत माड़ी सर ने हैंड रेस किया है, तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, भागवत सर। आज के सेशन में आपने जो वीडियो दिखाया सर, हेलो, आवाज आ रही है। आज के सेशन में जो वीडियो देखा आपने कि पहले एक ही व्यक्ति डांस कर रहा है, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू डांस रखा तो बाकी के लोग भी धीरे धीरे आने लगे।
तो ये ध्यान में आया कि अपन अगर कंटिन्यू कुछ करते रहते हैं और लोग देख रहे हैं तो पहले लोग कम आते हैं लेकिन बाद में ज्यादा आ रहे हैं लेकिन लोग, बराबर। वो अच्छा लगा। लेकिन मतलब कंटिन्यू अगर अपन रखते हैं तो वहां पे सक्सेस हो सकते हैं अपन। नेटवर्क मार्केटिंग में ये जादू है और वो वीडियो से ध्यान में आ गई मेरे आज। यही जादू हमें ऑथर सिखा रहे हैं। हाँ, और बाकी जो वीडियो, सॉरी वीडियो नहीं, अपनी स्टोरी का जो बताया आपने, अपनी सक्सेस स्टोरी का, और हम्म। आगे जाके मतलब अपन जिस प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे वहां पे जाके अपने को जो प्रेजेंटेशन देना है उसमें अगर अपनी स्टोरी हो तो बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है वो प्रोस्पेक्ट डन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भागवत सर। कंसिस्टेंटली हमें, मैं वीडियो इसीलिए दिखाया, एक्चुअली वीडियो आज के सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी के लिए मैंने उस वीडियो को आपके सामने चलाया। उसके लिए हमने पिछले एक चैट में अमेजोन का एक एग्जांपल भी लिया था। अमेजोन जो नदी है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी नदी है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर के नाम से वो जानी जाती है। और उसका जब उगम स्थान जो है वहां पे अगर हम जाके देखते हैं तो हर 3 सेकंड के बाद एक बूंद गिरती है। और वो नदी सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। तो ये क्यों है? क्योंकि वो जो बूंद गिरता है, पहला बूंद गिरता है, उसके बाद 3 सेकंड में दूसरा बूंद गिरता है। तो ये अनादि काल से शुरू है कंसिस्टेंटली, उसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं है। तो कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा उदाहरण ये हो सकता है, और इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने चलाया था। थैंक यू भागवत सर। मैं पुरुषोत्तम खुमकर सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा सर। कंसिस्टेंसी ये मेन रोल है, और ये कंसिस्टेंसी में प्रोफेशनल यानी मास्टर ऑफ किंगन, अपन जब प्रोस्पेक्ट लिए उनको आमंत्रित करते हैं तो अपनी भी तैयारी यानी रेडी टू सर्व रहना चाहिए। जैसे कोई भी प्रोस्पेक्ट आता है तो हर चीज को वो बहुत गहरे से देखता है। यानी अपन शादी के लिए जब जाते, कोई एखादा लड़की ढूंढने यानी लड़का देखने के लिए, तो आने वाले सिर्फ खाने के लिए नहीं आते, वो सब बैकग्राउंड देखते, लेन देन देखते, उसका घर का सब नजरिया देखते। बाद में वो तो भी बाद में नहीं बोलते, घर जाने के बाद में बोलेंगे, फोन पर बोलेंगे, ऐसा कह के जाते। तो वो भी कह के वो जाते उस तरीके अपने को आपको जो अपना उनको डेमो दिखाना है, उसमें सब जो अपने वस्तुएं है सब अच्छी तरह होना चाहिए। जैसे अपनी तैयारी रहती, खुद की स्टोरी तो रहती, लेकिन अपनी वो डेमो की जो तैयारी रहती वो भी अच्छी होनी चाहिए। यस। यानी अपनी मशीन अच्छी, अपना पॉप करते समय पानी आना, वो जो चीजें है वो सब प्रोस्पेक्ट देखते हैं। और अपनी उत्सुकता अपन उनको कैसे बताते, जुनून। हाँ, अपना जुनून, अपनी उत्सुकता, तो उन पर ही उनका बहुत ध्यान रहता है। यानी वो आने वाला व्यक्ति कंप्लीटली ब्लैंक रहता है। अपना उत्पादक का जितना अपन बताएंगे, डीप में बताएंगे, वो उनको सही लगेगा। यानी हर एक शब्द पर अपना फोकस होना चाहिए। अपन उनको क्या बता रहे, जो बता रहे वो सही बता रहे, कि जो अपने पास है उनको जो भी यानी प्रूफ देना है तो वो भी अपने अपने आपके पास होनी चाहिए। वो सब लोग देखते हैं, और इससे अपना एक्सलेंस
वो दिखने को चाहिए उनको। इस सेशन से अपने को ये मिला। थैंक यू, धन्यवाद। सर बहुत ही बढ़िया शेयरिंग किया सर आपने। आपकी शेयरिंग की वजह से बाकी लोगों को भी बहुत सारी वैल्यूज मिल गई। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि शेयरिंग इसलिए करना चाहिए कि कुछ लोग सेशन के दौरान कुछ चीजें नहीं समझ पाते, तो आज अभी आपकी शेयरिंग की वजह से बहुत से नोशंस उसमें क्लियर हो चुके हैं और बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम्पल देके आपने उसे समझाया कि जैसे लड़के देखना जाते हैं लोग, तो उसे सब ऑब्जर्व करते हैं, तो उसे जिस तरीके से तैयार रहना होता है, उसके बावजूद भी लोग बोलते हैं कि बाद में बताएंगे घर जाके। तो हमें भी डेमो के पहले अपना पूरा क्लास सेट सफाई से रेडी रखना है, अपना ओआरपी मीटर चेक करके रखना है, अपना पानी का पीएच सही आ रहा है, यानी ये सभी चीजों के प्रति हमें तैयार रहना है। और साथ साथ प्रोस्पेक्टस जो भी क्वेश्चन पूछता है, तो उसे कैसे सामना करना है, इसके लिए भी हमें अपने आप को प्रेजेंट रखना है। तो बराबर। ये बहुत सही चीज आपने यहाँ पे बताई। थैंक यू सर। अभी सुपेश कुमकर सर है, सबसे यंगेस्ट और डायनामिक लीडर है अपनी टीम के इनेजिक के। इनको थैंक यू। मैं अनम्यूट करता हूँ। थैंक यू सर। आज का सेशन जबरदस्त हो गया आपका। और फर्स्ट ये चीज सीखने को मिली कि अपने पास जो टूल्स है उसको प्रोस्पेक्टर्स के साथ कनेक्ट करना है, हम्म, उस चीजों को उनके समीप रखना है, ना कि अपने पास का कुछ ऐड करना है। एंड सेकंड चीज ऐसी समझ में है कि जो विट्ठल सर हमेशा बोलते हैं कि मार्केट में स्टोरियां बेची जाती है, यस। तो आपकी एक स्टोरी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में लोग स्टोरियां खरीदती है सबसे पहले। ये चीज आज क्लियर हुई। और थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत ही बढ़िया। मार्केट में स्टोरियां बेची जाती है, लोग स्टोरियां देखते हैं। हम भी तो पैसे खर्चा करके स्टोरी देखने जाते हैं टॉकीज में, क्योंकि उसमें भी एक स्टोरी होती है, हीरो का सक्सेस, हीरोइन का सक्सेस। तो वो भी एक सक्सेस स्टोरी बड़े चाव से हम देखते हैं। तो हर एक की जिंदगी में अपनी खुद की स्टोरी होती है। हर एक की जिंदगी का एक फेज होता है, अच्छा हो या बुरा हो। कोई बुरे फेज से आके अच्छे फेज में आता है, तो कहाँ से उसकी जिंदगी में बदलाव होता है। तो उस बदलाव को लेके ऑथर ने जिस जिस पॉइंट में बताया है, किस तत्वों की किन तत्वों की उसमें आवश्यकता होनी चाहिए, तो उसी तरीके पे हमें अपनी खुद की स्टोरी बनाना है। स्टोरी बनाने के पहले हमें जो पहले जो स्किल्स बताए, उन सब स्किल्स को हमें ये करना है। तो अभी खुमकर सर, खुमकर मैडम करेंगे शेयर आप हैंड रेस। आपने चांस ही नहीं दिया, मैं बोलने वाली थी। नहीं, अभी दोनों साथ में है तो पता नहीं चलता है कि हैंड रेस। दोनों करना है। नहीं नहीं, वैसी ये बात नहीं। मैं ये बता रही थी जो आज ऑथर ने जो कहा, स्टोरी बतानी है खुद की, लेकिन वो रियल स्टोरी चाहिए। यस। रियल स्टोरी का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। जो अपनी इमेजिनरी अगर स्टोरी होगी, किसी की सुनी सुनाई होगी, तो उसका इम्पैक्ट कम गिरता है। लेकिन अपनी खुद की जो इमेज स्टोरी रहती, तो वो अपने बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलती है। और इनर्जेटिक होना चाहिए हमें हमेशा। अगर हम इनर्जेटिक रहेंगे तो सामने वाले के पर वैसा इम्पैक्ट पड़ता है। यस बिल्कुल। अगर हम ही ऐसे चेहरे पे 12 बजे हैं, ऐसे बैठे, तो सामने वाला हमारे सुनेगा नहीं। हाँ, थैंक यू सर। तो बहुत सही बात बताई आपने यहाँ पे। स्टोरी बतानी है, लेकिन स्टोरी में रियलिटी होनी चाहिए। सिर्फ स्टोरी बनाने के लिए कुछ चीजें, मनगढ़ंत चीजों को ऐड करके हमें बताना नहीं है, ताकि जब भी हम अपनी स्टोरी बताए, तो अपने अंदर एक विश्वास, अपने अंदर एक जुनून और अपने अंदर एक उत्साह, इन तीन चीजों को सामने वाला जो प्रोस्पेक्टस है वो हमें देखता है। तो सपोज हमने बता दिया कि मैंने इसमें लाखों रुपए कमाए,
लेकिन आपके पास उनको दिखाने के लिए आपके अकाउंट स्टेटमेंट होने चाहिए। अगर हम बताते हैं कि मैंने ऐसा इतनी प्रॉपर्टीज खरीदी तो आपके पास उसके सेल डीड होने चाहिए। तो हर एक चीज रियल लगनी चाहिए ताकि विश्वास के साथ हम उसे कह सके और पूरे विश्वास के साथ अपना प्रोस्पेक्ट भी उसे जान सके। तो ये होता है अपनी कहानी बनाना, और कहानी बनाने के बाद उसे प्रेजेंट किस तरह से करना है ये भी ऑथर ने हमें यहाँ पे बताया। तो इसी तरीके से हमें 1 by 1 स्किल्स इस गोप्रो के बुक में जो भी दिए गए तत्व है, जो भी दिए गए नियम है, उन नियमों के अनुसार अगर हम चलते हैं तो डेफिनेटली हम 101% इसमें सक्सेस होते हैं। तो हमें खुद को नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस अगर बनाना है तो हमें कंसिस्टेंटली इन सब नियमों का पालन करना है, साथ साथ अपने अंदर के स्किल्स को भी डेवलप करना है। और स्किल्स डेवलप होते हुए हमारा जो इनकम जनरेट होता है तो उस इनकम पे हमें अपने स्किल्स डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है उसे रोकना नहीं है। हमें कंटिन्यूअसली स्किल डेवलपमेंट का जो प्रक्रिया है अपनी चालू रखनी है। नए नए स्किल्स हमें सीखना है ताकि हमारा उत्पादन, हमारा जो इनकम है वो और बढ़ता रहे। तो इसी तरीके के साथ हमें काम करना है और सच्चाई से और लगन से जुड़े अगर रहते हम तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम ढेर सारा इनकम गैदर कर सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने का ये एकमात्र उपाय ऑथर ने बताया कि अच्छा नहीं लेकिन सबसे औरों से बेहतर है। इसकी कंपैरिजन सब अलग अलग सेक्टर के साथ ऑथर ने की, और उसके साथ ऑथर ने हमें बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग औरों से बेहतर है। तो क्यों ना हम सब इस बेहतरीन और बेहतर जीवन को अपनाएं और नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अपने सभी के सपनों को आसानी से और बड़ी शिद्दत के साथ हम पूरा करें। यही आज की इस सैटरडे चैट में कामना करता हूँ और अभी यहीं पे रुकता हूँ। नमस्कार, गुड नाइट।